नौवीं क्लास के मेरे विद्यार्थियों, जुलाई महीने ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਸ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ ਟੈਸਟ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦਾ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਮੰਥਲੀ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ 1 ਨੰਬਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਗਲਤ ਚੁਣਨ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 21 ਤੋਂ 30 ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2 ਅੰਕ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1-1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ 2-2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਲਟੀਪਲ ਚੁਆਇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਸਕੁਆਇਰ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਪਰਫੈਕਟ ਕਿਊਬ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਘਨ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਵਰਗ ਅਤੇ ਪੂਰਨ ਘਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵਰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਘਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਵਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਦੀ ਘਾਤ 2 1, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 4, 3 ਦੀ ਘਾਤ 2 9, 4 ਦੀ ਘਾਤ 2 16, 5 ਦੀ ਘਾਤ 2 25। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤਾਂ 6 ਦੀ ਘਾਤ 2 36, 7 ਦੀ ਘਾਤ 2 49, 8 ਦੀ ਘਾਤ 2 64 ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਘਾਤ 3 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਨ 1 ਦੀ ਘਾਤ 3, 2 ਦੀ ਘਾਤ 3 8, 3 ਦੀ ਘਾਤ 3 27, 4 ਦੀ ਘਾਤ 3 64। ਤੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 64 ਅਮਾਊਂਟ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ 64 ਆਪਸ਼ਨ ਏ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਨ ਵੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। px ਬਰਾਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ 2x + 1 ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ p ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1। ਹੁਣ p ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ x ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਭਰਨਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ 2 ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਥਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, 2 ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 2, x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 1 ਭਰਨਾ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਲੱਸ, 1 ਦੀ ਥਾਂ 1। ਹੁਣ 2 ਨੇ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, 2 ਏਕਮ 2 ਜਮਾ 1 ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 3 ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਬੇਟਾ ਜੀ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੂਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 3rd, ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆਫ ਓਰੀਜਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ x ਧੁਰੇ ਅਤੇ y ਧੁਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਬਿੰਦੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 0। ਤਾਂ ਮੂਲ ਬਿੰਦੂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਤੀਜੇ ਦਾ 0 0। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, 2/9 ਅਤੇ 7/9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਪਰਿਮੇਯ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ 0 1 2 3 4 5 6 7, 2/9 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9। 2/9 ਅਤੇ 7/9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ 3/9 ਅਤੇ 5/9। ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਆ ਗਿਆ ਚੌਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ, 2/9
ਤੇ 7/9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 5ਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਫ ਲੈਂਥ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਆਇਤ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਇਤ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ। ਲੰਬਾਈ ਹੈ x ਜਮਾ 2, ਚੌੜਾਈ ਹੈ x ਜਮਾ 1। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ। x ਤੇ x ਦੀ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਆ ਗਈ, 2 ਤੇ 1 3, ਫਿਰ 3x ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2 ਗੁਣਾ 1 2। ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ x ਦੀ ਘਾਤ 2 ਜਮਾ 3x ਜਮਾ 2। C ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਲਿਆ 3x, ਫਿਰ 2 ਏਕਮ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਨੇਮ ਦ ਐਕਸਿਸ ਔਨ ਵਿਚ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਜ਼ ਇਟਸ ਐਬਸੀਸਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਉਸ ਧੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿੰਦੂ ਦਾ ਭੁਜ ਐਬਸੀਸਾ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ y ਧੁਰਾ ਖੜਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x ਧੁਰਾ ਲੇਟਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 0 0, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ x ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ, y ਵੀ 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ x 0 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਧੁਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਧੁਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ y ਧੁਰਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ x ਤੇ y ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 0 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y ਧੁਰਾ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ 0 ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਉਹ ਧੁਰਾ ਦੱਸੋ ਜਿਸ 'ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ y ਧੁਰਾ, B ਆਪਸ਼ਨ। तो लो जी साढ़े चौथा, पंजवां, छेवां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां नैक्सट क्वेश्चन करांगे। क्वेश्चन 7वां देखो ध्यान नाल, कहंदा है x 3 की घात 8 भाग 3 की घात 2। सारिਆਂ ਨੂੰ पता है बेटा जी ਜਦੋਂ दो आधार सेम होण ते भाग ਦਾ निशान ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਘਾਤਾਂ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 की घात 6 आंसर आएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ऑप्शन आ गया जी C ऑप्शन 7वें क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ आ रहा है सारे नूं। हुण आपां 8वां क्वेश्चन करांगे। ध्यान नाल देखो, वट शुड बी ऐड -2y की घात 2 विच की जोड़िया जाए कि -10 आ जाए। हुण तुसीं सारिਆਂ ਨੂੰ समझदार हो, -2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ 10 बनाने ਲਈ 8 जोड़ने पैने हैं तो 2 माइनस का तो 8 भी माइनस का ही होएगा, ताइयों 10 बनूगा। माइनस माइनस प्लस होंदा ना, ਇਹਦਾ मतलब ऑप्शन तुहाडे सामने है बेटा C ऑप्शन -8y की घात 2। ये तो बहुत ही सौखा सिंपल वे नाल सॉल्व हो गया। 9वें क्वेश्चन ते पहुँच गए ने बेटा आपां जी। कहते कि एक डायग्राम दिता गया, ये A ते B दे बिंदु पता करो, निर्देशांक पता करो किहड़े होणगे। ध्यान नाल देखियो, देखो बेटा मैं जूम किया, A बिंदु का निर्देशांक की होएगा। देखो A बिंदु के उत्ते x धुरे ते 4 है, इत्थे 4 आ गया, तो इसे धुरे ते y हमेशा 0 होंदा है। तो A बिंदु की आ गया तुहाडे कोल 4,0। लगी गल समझ? तो हुण तुसीं B बिंदु पता करना है ना। हुण B बिंदु देखो आ रहा, इत्थे y धुरा है बेटा, तो y धुरे ते हमेशा x 0 होंदा है, इस करके 0x 0 होएगा, तो y धुरे ते बिंदु है 3, तो आंसर की आ गया 0,3। उम्मीद है समझ आया होगा। जदों भी कोई बिंदु x धुरे ते होंदा है तो x धुरे ते उत्ते x की वैल्यू है y 0, y धुरे ते y की वैल्यू का तो y 3, क्योंकि हमेशा जो बिंदु होंदा ना बेटा वो x, y होंदा है। पहला x लिखना होंदा है फिर y, याद रखियो, पहला x की वैल्यू फिर y की वैल्यू होंदी है। हुण तुसीं x की वैल्यू देखो, a x धुरे ते किस बिंदु ते है, 4 ते है, तो x धुरे ते y होंदा है 0। इधर B x धुरे ते 0 है तो y धुरे ते 3 है। इस तरह साडा आंसर आ चुका है। हुण आपां आंसर मैच करते हैं। देखो बेटा जी साडे कोल जिहड़ा ऑप्शन है वो की आ गया है, A है 4,0 तो B है 0,3। पहला ही ऑप्शन साडे कोल 9वें का आंसर है A ऑप्शन। तो इस तरह साडा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां 10वें क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बेटा जी। 10वां क्वेश्चन देखो, कहता है 62 की घात 2 -38 की घात 2। याद रखो बेटा जी दोनों के उपर घात 2 है, एक माइनस विचकार लगा है, तो की करते हैं 62 विच 38 जोड़ते हाँ तो घटाते हाँ। एक बारी घटा लिया तो एक बारी
जोड़ लिया। ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला होंदा है ए प्लस बी ए माइनस बी। घटा के कितना आया 12 चो 8 गए 4 24 तो जोड़ के आया बेटा जी 100। तो 24 ਨੂੰ 100 ਨਾਲ गुणा किया कितना 2400 तो साडा आंसर आ गया बेटा जी 2400 बी ऑप्शन 10वें क्वेश्चन का। उम्मीद है तुहानू 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन भी चंगी तरह समझ लग गया होएगा ते अपनी गलतियां भी पता लग गई होणगियां ते अपने मार्क्स भी पता लग चुके होणगे। हुण आपां अगला क्वेश्चन करते हैं। लो जी 11वां क्वेश्चन आ गया तुहाडे कोल ट्रू एंड फॉल्स सही या गलत। एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। याद रखो मैं तुहानू याद कराया सीगा सब तो पहला आंदा है नैचुरल नंबर फिर होल नंबर फिर इंटीजर फिर रैशनल। जे ऊपर तो थले आ रहे हो तो ट्रू जे थलों ऊपर जा रहे हो तो फॉल्स। सीधी जी गल समझाई सी। हुण तुसीं देख लो रैशनल तो इंटीजर जा रहे हैं थलों ऊपर जा रहे हैं तो फॉल्स होएगा। गल खत्म सोचण दी लोड़ ही नहीं है बेटा। तो अपने को बी ऑप्शन गलत है। 11वां क्वेश्चन का आंसर है गलत। 12वां क्वेश्चन देखो बेटा जी सही गलत वास्ते एक्स की घात 2 जमा वर्गमूल एक्स जमा 2 एक दो घाती बहुपद है। जदों कोई वेरीएबल एक्स या वाई वर्गमूल के अंदर आ जाए तो वह कदे बहुपद हुंदी नहीं। तो यदा मतलब 12वें का भी जड़ा है आंसर की दिता गया है गलत क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो दो घाती की तो गल ही दूर दी है। 13वां क्वेश्चन देखो एक्स धुरे ते जिहड़ा बिंदु हुंदा है वो y,0 हुंदा है। बिल्कुल सही क्योंकि मैं दस्सिया सी तुहानूं एक्स धुरे ते पहला बिंदु कुछ हुंदा है दूजा पक्का 0। इत्थे चाहे y होवे x होवे a होवे b होवे वो मायने नहीं रखता वो कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब सही गल है 13वां क्वेश्चन सही है ऑप्शन ए। आप 14वें क्वेश्चन पर चलते हाँ। वर्गमूल 225 कहता है अपरिमेय संख्या है लेकिन नहीं क्योंकि 225 दे जो आप गुणनखंड बनाने तो 3 गुणा 3 5 गुणा 5 बनते हैं। 3 बाहर निकल गया 5 भी बाहर निकल गया तो आंसर आ गया 15। वर्गमूल खत्म हो गया। तो जिस रकम का वर्गमूल खत्म हो जाता है वो होंदी है परिमेय अपरिमेय नहीं होंदी। इस करके 14वें क्वेश्चन का आंसर भी गलत मन्निया जाएगा बी ऑप्शन के नाम। इस तरह थोड़ा 11वां 12वां 13वां 14वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। 15वां क्वेश्चन तुहाडे कोल की आ रहा है देखो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की घात 2 इन दिस इक्वेशन इज -1। इस इक्वेशन के एक्स की घात 2 का गुणांक -1 है। देखो एक्स की घात 2 देख रहे हो वो माइनस का निशान लगा है ना तो फिर -1 बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो ना एक्स की घात 2 माइनस एक्स की घात 2 जमा एक्स की घात 3 विच एक्स की घात 2 का गुणांक हुण उहदे अगे कुछ ना हो तो एक लगाने ना तो की आ गया गुणांक देखो -1 बिल्कुल सही जवाब। इसका मतलब 15वें क्वेश्चन का आंसर सही मन्निया जाएगा। तो 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं बेटा जी सही तो टिक कर लिया गया है। 16वें क्वेश्चन तो साढ़े को आ गए जी फिलिंग द ब्लैंक्स। बहुत ही सौखे क्वेश्चन ने। कहते कार्टीजियन समतल विच लेटवीं रेखा नूं की किया जाता है। इन्हें कार्टीजियन प्लेन द हॉरिजेंटल लाइन आ होंदी है लेटवीं आ होंदी है खड़वीं। खड़वीं नूं वाई तो राह लेटवीं नूं एक्स तो राह। तो इसका मतलब इनू की किया जाता है एक्स एक्सिस मतलब एक्स तो राह सी ऑप्शन। साडा 16वें क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। हुण 17वां क्वेश्चन करांगे। कहते फॉर्मूला याद किया होएगा तुसी a - b की घात 3 का तो इस खाली थां ते की आएगा। तो सारिਆਂ ਨੂੰ याद कराया सीगा कि एक बारी a के उपर घात 2 आती है एक बारी b के उपर। हुण इत्थे देखो a के उपर घात 1 है b के उपर 2 है तो हुण इत्थे की आएगी a के उपर घात 2 हो जाएगी तो b के उपर घात 1 हो जाएगी। आई गल समझ। इसका मतलब a के उपर घात 2 तो b के उपर 1। पहला ही ऑप्शन तुहाडा आंसर आ गया है 17वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। उम्मीद है समझ आया होगा। 18वां क्वेश्चन करांगे। 18वां क्वेश्चन कहता डेसीमल फॉर्म ऑफ 36/100। कितना ही सौखा क्वेश्चन बेटा। थले 2 जीरो ने एक तो एक 2 के पिछे पॉइंट मतलब 0.36। तो तुहाडे कोल ऑप्शन आ गया जी
बी ऑप्शन 18वें क्वेश्चन का आ चुका है। उम्मीद है तुहानूं समझ आए होणगे 15 16 17 18 क्वेश्चन जिन्हां दे आंसर्स भी तुहानूं समझाए गए ने किवें आए ते की आने सीगे। तुहानूं पता लग गया होएगा किन्ने क्वेश्चन तुसीं सही कीते ने। हुण आपां 19वां ते 20वां क्वेश्चन कर रहे हैं, एक एक नंबर का ध्यान नाल देखियो। कहते 8 वर्गमूल 15 नूं जे आपां भाग करिए 2 वर्गमूल 3 दे नाल तां की आंसर आएगा। हुण तुसीं ध्यान नाल देखो, वर्गमूल 15 जो हुंदा ना वो वर्गमूल 5 गुणा 3 हुंदा है। तो उन्होंने वर्गमूल 5 ते 3 लिख दिए, 3 कट्टिया गया, 2 नाल 8 कट के 4 आ गया तो बचा 4 वर्गमूल 5। तो डी ऑप्शन आ गया जी क्वेश्चन नंबर 19 मेरा। डी ऑप्शन बहुत ही सौखे ढंग नाल 20वें क्वेश्चन वाल चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक नंबर का। एक समतल सतह ते असी डैश सीधियां रेखावां लभ सकते हाँ। इन अ प्लेन सरफेस वी कैन फाइंड डैश स्ट्रेट लाइनस इनफाइनाइट। बिल्कुल सही। आपां ये ऑप्शन अनगणित एक समतल सतह ते हम अनगणित सीधी रेखावां ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह साढ़े बेटा एक एक नंबर वाले 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो ध्यान देखियो सारे। हुण आपां 21वां क्वेश्चन शुरू करन लगे 2 नंबर का। ध्यान नाल देखना सारिਆਂ ने। 21वां क्वेश्चन 2 नंबर लई कहंदे कि इस नूं x जमा 1 नाल भाग देण ते बाकी पता करो। सब तो पहले याद रखो असी की करना हुंदा है, इस रकम नूं px का नाम देना हुंदा है। x की घात 3 3x की घात 2 जमा 3x जमा 1। तो इस रकम नूं 0 के बराबर रख के उतों x की वैल्यू आ गई -1। हुण आपां की करदे हां, -1 इहदे विच भरदे हां बेटा। जिथे x है देखो, जिथे जिथे x है उत्थे असीं की भर देना है -1 भर देना है। तो सब तो पहला असीं की लिखांगे x की थां -1, इस x की थां की लिखांगे -1 की घात 3 जमा की थां जमा 3 की थां 3, फिर इस x की थां असीं भरांगे -1 की घात 2 फिर जमा फिर 3, फिर इस x की थां लिखांगे -1 फिर जमा फिर 1। जिथे जिथे x सीगा उत्थे -1 भर लिया। -1 3 बारी हुंदा है तो -1, 2 बारी होवे तो +1 बन जाता है, +3 फिर -3 फिर +1। 1 नाल 1 3 नाल 3 कटिया गया तो आंसर कितना आ गया 0। तो साढ़े कोल शेषफल की बचिया 0। बी ऑप्शन आया साडा 21वें क्वेश्चन का। उम्मीद है समझ आया होगा। हुण आपां कड्डांगे 22वां क्वेश्चन। यूज सुटेबल आइडेंटिटी 3 - 2x 3 + 2x। तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे पहली रकम भी सेम है दूजी रकम भी सेम है तो साइन वक्रे वक्रे ने, तो इनू असीं बोलते हैं a - b a + b, जिसका फार्मूला होता है a² - b²। हुण a कौन है तो b कौन है बेटा। पहली रकम a है, दूजी रकम b है, बस माइनस नहीं लेना। तो 3 की घात 2 होंदा है 9, तो 2 की घात 2 4x की घात 2। 9 - 4x की घात 2 साढ़े कोल ऑप्शन आ गया है जी सी। तो 22वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन देखो। 2 नंबर वाले क्वेश्चन है पर बहुत छोटे छोटे से ने। तो साढ़ा 21वां 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां अगे चलते हैं। 23वां क्वेश्चन आ गया जी साढ़े कोल। 99 की घात 3 बताओ कितनी होएगी। ठीक है जी। हुण 99 की घात 3 असीं की लिखदे हुंदे सीगे 100 - 1 की घात 3। फार्मूला a की घात 3 - b की घात 3 -3a की घात 2 ते b प्लस 3a फिर b के उपर घात 2। ये बन गया तुहाडे कोल 1 2 3। 3 घात है ना तो 3 बारी लिख लिया। -1 - 3 तो बाद 4 जीरो आ जानी क्योंकि घात 2 लगी है, प्लस 300। ਇਹਦਾ मतलब प्लस वाले ने प्लस वाला जोड़िया तो साढ़े को 1 0 0 0 3 0 0 आ गया, माइनस आ गया 3 0 0 0 1। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਘਟਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। तो देखो 1 0 0 0 3 0 0 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 0 0 0 1 ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ। 1 ने इत्थों हासिल लिया, इत्थे रह गया 9, इधर भी 9, इधर आ गया 2 0। इन्हें इत्थों हासिल लिया, साढ़े को आ गया 7 ते 9।
तो 970299 970299 साढ़े कोल किहड़ा ऑप्शन आ गया बेटा जी 23वें क्वेश्चन का 20 ऑप्शन आ गया। उम्मीद है समझ आया होगा। 24वें क्वेश्चन में चलते हैं। 24वें क्वेश्चन कह रहे हैं कि x माइनस एक इहदा फैक्टर है, x माइनस एक इसका गुणनखंड है। तो तरीका तो वही है, x माइनस एक नूं 0 बराबर रख के x की वैल्यू 1 पता की है, तो उस एक नूं इत्थे भरांगे कि 1 की घात 2 3 1 जमा के बराबर 0 बराबर 0 क्यों लिखा, क्योंकि गुणनखंड दिता गया है। ये आ गया k माइनस 3 जमा के बराबर 0 2 के माइनस 3 बराबर 0 है ना, के तो के 2 के हो गए, फिर 2 के बराबर आ गया 3, तो के का मूल कितना आ गया तुहाडे कोल 3/2। तो हुण तुसीं ध्यान नाल देखना है, साडे कोल ऑप्शन आ गई है सी ऑप्शन। 25वां क्वेश्चन देखो, सिक्सटीन दी पावर है 3/4, 16 के गुणनखंड बनाए, 2 नाल आ गया 8, 2 नाल 4, 2 नाल 2, 2 नाल 1, 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 आई गुणा पहला घात सी 3/4, 4 4 कट्टी गई, ठीक है ना। ये 2 की घात कितनी आ गई 3, कितनी बार लिखांगे 1 2 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तुहाडा की आ गया आंसर। तो ऑप्शन आ गया जी बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह साढ़ा 24वां तो 25वां सवाल कंप्लीट हो चुका है। हुण आपां 26वां क्वेश्चन करते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहे हैं कि √5 + √2 का स्केयर पता करना है बेटा। तुहानूं याद होएगा a जमा b की घात 2 का फार्मूला होंदा है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। इट मीनस √5 का स्केयर, √2 का स्केयर, 2ab, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। स्केयर नाल रूट कट गया 5 आ गया, स्केयर नाल रूट कट गया 2 आ गया, तो 2 वर्गमूल 5 दूनी 10, आंसर आया 7 जमा 2 वर्गमूल 10। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन आ चुकी है। क्वेश्चन 27, 329 नूं 400 नाल भाग करना है। देखो ध्यान नाल भाग करांगे ਆਪਾਂ 329 नूं विच रखांगे, 400 नूं बाहर ते भाग करेंगे। सब तो पहला 0 दशमलव लग गया तो सानू एक 0 मिल गया बेटा। देखो 8 चौका 32, बकाया बच गया 90, दशमलव ने सानू एक 0 और दे दिता, बन गया 900, 4 दूनी 8, 800 आ गया, बच गया 100, एक 0 और मिल गया, फिर 2 ते गया 800, बकाया 200, एक 0, फिर सानू मिल गया तो 2000, 450, 2000 भाग कंप्लीट हो गई। तो आंसर आया 0.8225, 0.8225 ऑप्शन आ गया ए ऑप्शन। तो 27वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। 28वां क्वेश्चन देखो, कहते -1,3, 3,-1 तो -4 -5 किस चौथाई विच होणगे। ध्यान देखना है, इत्थे हमेशा प्लस प्लस होंदा है, इत्थे माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, पता ना। हुण देखो ये है माइनस प्लस, ये किहड़ी कोऑर्डिनेट हो गया दूजी च, प्लस माइनस चौथी च, तीजी च, दूजी चौथी तीजी। देखो ध्यान नाल दूजी चौथी तीजी, सी ऑप्शन। 29वें क्वेश्चन की कह रहे देखो, जेकर ए बी सी एक रेखा ते स्थित बिंदु हैं, मैं देखो बिंदु बना लेने, तो ए बी जमा ए सी, देखो ना ए तो बी तो फिर ए तो सी को जोड़ के बी सी थोड़ा बन सकता ना, ए बी जमा बी सी बराबर ए सी, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। 29वें का 20वां ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आ गया बेटा। ए तो लेके बी तक, फिर बी तो लेके सी तक जो है वो ए सी बन जाएगा।
ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 30th ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਮੇਯੀਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਨਾਲ। ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ a ਦੀ 2 ਮਾਈਨਸ b ਦੀ 2। ਘਾ 2 ਨਾਲ ਵਰਗਮੂਲ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਰਗਮੂਲ 7 ਜਮਾ ਵਰਗਮੂਲ 6 ਬਟਾ 7 ਮਾਈਨਸ 6। 7 ਤੋਂ 6 ਗਏ 1, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, C ਆਪਸ਼ਨ 3ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੁਆਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਆਰੀ ਹੈ ਮੈਥ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।